students, good morning. So we are continuing our chapter number 8, classes and objects in Java. Last time we have learned about the what is class, and we have learned one program that about the room. How can we create a external class which is used into our main class, and in that we have used some variables and some methods like set attributes and areas and display. Then we call it in the next our main class. ऐसा हमने एक प्रोग्राम लास्ट टाइम देखा था. आज थोड़ा उसमें आगे बढ़ते हैं. नाउ क्लास इन जावा वी हैव ऑलरेडी रिटन one program that uses classes. Let us now learn the syntax and other details of how to create class object and use them in application. A class, first of all class के बारे में देखते हैं. A class is a template for multiple objects with the similar features. Classes embody all the features of a particular set of objects. For example, class room is a template for all the rooms with their common properties. In Java, a class is differentiating using class keyword as follows. कैसे बनाना है आपको पता ही है. सबसे पहले क्लास वर्ड लिखना है, फिर आपको जो क्लास का नाम रखना है वो नाम रख दीजिए, फिर कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक बनेगा. उसके अंदर आपको जितने वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स आप यूज कर सकते हैं. जो मेथड्स बनाना चाहो मेथड्स बना सकते हैं. Every class we write in Java is generally made up of two components, attributes and behaviors. Now what is an attribute? Attributes are defined by variables in a class. Behavior is defined by methods in a class. Methods are used to access or modify attributes. दो चीजें मेन है, एक तो एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर. हम जितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने रूम वाला देखा था, तो उसमें हमने लेंथ, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ विंडोज ऐसे कुछ वेरिएबल्स लिए थे. तो वो जो है वेरिएबल्स है, दैट इज एन एट्रीब्यूट्स. और दूसरी जो हमने मेथड बनाई थी, जैसे वो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेट करवाने के लिए सेट ATTR, देन एरिया मेथड बनाई थी, डिस्प्ले मेथड बनाई थी. तो दैट आर द बिहेवियर्स. तो ये जो बनाया हमने, मेथड्स आर यूज टू एक्सेस मॉडिफाई एट्रीब्यूट्स. मॉडिफाई एट्रीब्यूट्स यूज करके आप उसको यूज कर सकते हो. इन कोड लिस्टिंग 8.1 जो हमने देखा, we have defined a class named room with attributes defined by variable method, length, width, height and number of windows, and behavior by method name set ATTR, display and area. Another class is created to create an application using room class. Now creating object. Object create करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको. तो क्या स्टेप्स है वो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेरेशन. A variable means reference variable जो है हमारा, name of type class is declared with the syntax. क्या किस तरह से करना है, एक तो क्लास नेम और वेरिएबल नेम. जैसे मेन है उसके अंदर में क्या था, तो भाई रूम, हमारे क्लास का नाम हमने क्या रखा था, रूम, और वेरिएबल का नाम क्या रखा था, फॉर एग्जांपल रूम 1 के लिए तो R1 ऐसा लिख दिया, यानी रूम R1 ऐसा लिख सकते हो. Then instantiation, it is a keyword new is used to create the object by allocating memory. न्यू वर्ड यूज करना है. एंड इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर, जिसको आप स्पेशल टाइप ऑफ मेथड बोल सकते हैं, इज कॉल्ड टू इनिशियलाइज द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से पूरा ऑब्जेक्ट हम क्लियर कर सकते हैं. जैसे रूम R1 इज इक्वल टू न्यू रूम, ऐसा हमने दिया बनाया था उस प्रोग्राम के अंदर. In Java, a class is a type similar to the built-in types such as an int and boolean. So a class name can be used to specify the type of variable in a declaration statement, the type of formal parameters, or to return the type of a function. यहाँ पे देखिए किस तरह to declare an object of class room as following statement. तो पहले तो room R1, room क्लास का नाम है और वेरिएबल का नाम है R1. Now declaring a variable does not create an object. This is an important point to be remembered. In Java, no variable can ever store an object. A variable declaring using class type can only store a reference to an object. So variable of class type are also called referred as the reference variable. Here R1 is a reference variable. जो R1 हम ले रहे हैं वो कौन सा है, reference variable, क्योंकि वहां पे जो कुछ भी वैल्यूज और जो कुछ भी आने वाला है वो दूसरे क्लास जो है वहां से आने वाला. ये सिर्फ रेफरेंस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं उसको. नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो कैसे करना पड़ेगा, तो उसके लिए न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा. वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. ऑपरेटर न्यू allocates the memory for an object and returns the address of the object for later use. Reference is the address that memory location wherein the object is stored. In fact, there is a special portion of memory called heap where the objects lie. ये ध्यान में रखिए, जो रेफरेंस जो हमने लिया है, रेफरेंस इज द एड्रेस. जैसे R1 लिया है तो इज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर ऑब्जेक्ट इज स्टोर, जहां पे हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो स्टोर किए जाते हैं. इनफैक्ट
एक स्पेशल पोर्शन बनता है मेमोरी का जिसको हम हीप बोलते हैं, और वहां पे हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो वहां पे रहते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए न्यू वर्ड यूज करके तो वो वहां पे रहेंगे। When an object is created, in addition to allocating a memory, a special method called constructor is executed to perform initial task. ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं जो एडिशनल अलोकेटिंग मेमोरी जो हमारे उसके लिए एक स्पेशल मेथड बोले जाते हैं उसको कंस्ट्रक्टर और भी डिटेल्स में पूरा इसी चैप्टर के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं, तो उस टाइम पे ज्यादा डिटेल्स में देखेंगे भाई कंस्ट्रक्टर एग्जैक्ट क्या है, उसमें क्या क्या यूज होता है। We will learn about constructor later in this chapter. Let us create an object of type room and assign its address to variable R1 as follow. किस तरह से होगा देखिए, तो R1 is equal to new room, इस तरह से हम बना सकते हैं। R1 हमने वेरिएबल पहले तो देखिए वैल्यू डिक्लेयर किया हमने, रेफरेंस वेरिएबल जो R1 है वो डिक्लेयर किया हमने। कैसे डिक्लेयर किया, क्लास का नाम हमने रखा था रूम और R1 इस तरह से, फिर इसमें न्यू और रूम ऐसा यूज किया हमने। Hence parenthesis is important. Don't have them off. With empty parenthesis without arguments a difficult constructor is called. It initializes the attributes variable of the object using default value. The parenthesis has contain arguments that determine the initial value of variable. This is possible by using user-defined constructor. When statement R1 is equal to new room is executed, remember that the object is not stored in variable R1. वेरिएबल R1 कंटेन्स ओनली एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वहां पे स्टोर नहीं होगा, वहां पे तो R1 तो सिर्फ रेफरेंस के लिए है, वो जो ऑब्जेक्ट का है वो एक एड्रेस है। बोथ द अबव स्टेप्स यूज्ड टू डिक्लेयर एंड क्रिएट द ऑब्जेक्ट कंबाइन इनटू सिंगल स्टेटमेंट। दो जो अलग अलग हमने किए उसको सिंगल स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, रूम देन R1 फिर नीचे जाके R1 इज इक्वल न्यू, साथ में भी कंबाइन में भी कर सकते, जैसे हमने दूसरी बार में लिया था रूम R2 इज इक्वल टू न्यू रूम। Variable R2 contains a reference or address of memory location where a new object is created. It is also to be noted that class determines only the types of the variable. The actual data is contained inside the individual data object and not in the class. Thus, every object is its own set of data. In code listing 8.1, we have created two objects, R1 and R2, using new operator. These objects are allocated different memory space to hold their data values. सी इन द 8.2 देखिए यहाँ पे हमने जो वैल्यूज दी थी तो उसमें हमने क्या दिया था, ऑब्जेक्ट R1 लिया था तो R1 के अंदर सेट ए डबल दिया, सेट एट्रीब्यूट्स जो होता है उसके अंदर हमने वेरिएबल्स की वैल्यू दी थी, इसमें लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ विंडोज यानी L, W, H एंड NW यूज किया था उसमें। तो वो जो होता है तो लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर, अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज देंगे ना उस वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाए। जैसे R1 में हमने पहली बार में दिया तो 18.0, 12.5, 10.0 एंड 2, तो वो किसको मिल गया, तो भाई पहले हमारे उसमें L था तो L को 18 यानी कि लेंथ को मिल गया, दूसरी वैल्यू 12.5 थी वो विड्थ को मिल गई, तीसरी वैल्यू 10.0 थी वो हाइट को मिल गई, और जो 2 था वो N विंडोज को मिल गई हमारी। सेम ऐसा ही हमने R2 के लिए भी लिया था, R2 में भी सारे एट्रीब्यूट्स का जो था उसके अंदर हम वैल्यू डाल दिया हमने 14, 11, 10 एंड 1। तो 14 वो एट्रीब्यूट में पहला कौन सा था, तो भाई L था, तो L मीन्स क्या होता है, लेंथ, तो लेंथ को 14 मिल गई, सेम विड्थ को 11 मिल गई, हाइट को 10 और नंबर विंडोज को 1। इस तरह से वैल्यू R1 और R2 के अंदर, R1 जो पहला रूम है तो उसके अंदर ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, R2 के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो टू इंस्टेंस ऑफ क्लासरूम इस तरह से डिजाइन होगा। In Java, when objects are no more needed, the memory is claimed back for the reuse. Java has a garbage collector that looks the unused object and reclaims the memory that those objects are using. ये याद रखेगा जाता है इसमें, we do not need to any explicit freeing of memory. Java garbage collect होता है, वो unused ऐसा जो भी डेटा होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर रिक्लेम करेगा उसको। In object oriented programming, जिसको OOP बोलते हैं हम, language creating an object is also called object instantiation. An instance for an object is created by allocating memory to store the data of the object. An object that belongs to a class said to be an instance that class. Thus, an instance of a class is another word for an actual object. Class is the abstract representation of an object, whereas an instance of its concrete representation. In fact, the terms instance and objects are often used interchangeably in OOP language. Each instance of a class can hold different values for its attribute in variables and declared in a class. Such variables are referred to as an instance variable. Instance variables are created at the time of creating an object and stayed throughout the life of the object. Instance variable define the attributes of an object.
The class defined to kind attribute each instance sets and odds value of attribute. The define an object behavior we create methods. In Java, method can be defined inside a class only. This method can be invoked using the object to access or modify the instance variable. Such methods are known as the instance method. ये जो OOP जो लैंग्वेज है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, जिसके अंदर हमने ये देखा कि इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एक अलग वर्ड एक यूज हो रहा है, जिसके अंदर क्लास जो होता है वो बनाया जाता है। तो उसके अंदर जो वेरिएबल्स हम लोग यूज करने वाले तो उसको इंस्टेंस वेरिएबल बोला जाता है, जिसके अंदर हमने ऑल डिफरेंट वैल्यू सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डिक्लेयर होती है क्लास के अंदर। तो ये जो जैसे जो वेरिएबल्स होते हैं उसको इंस्टेंस वेरिएबल्स बोला जाता है, जो जब क्रिएट किया जाता है उस टाइम पे यूज होता है, और अगर आप चेंज नहीं करते तो लाइफ टाइम वो ऑब्जेक्ट के अंदर रहता है। इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है वो एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्लास डिफाइन किया जाता है, ऐसे उसके जैसा ही बनाया जाता है। एंड इंस्टेंस स्टोरेज ऑन वैल्यू एट द एट्रीब्यूट्स। तो डिफाइन एन ऑब्जेक्ट बिहेवियर मेथड हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट बिहेवियर के लिए। तो यहाँ पे ये जो मेथड्स हम लोग जो बना रहे हैं जिसके अंदर हम इंस्टेंस वेरिएबल यूज करने वाले हैं, तो ऐसी मेथड जो ऐसे सच मेथड्स आर नॉन एज द इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड्स आर यूज्ड टू डिफाइन बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Invoking a method is to ask to object to perform some task. In code listing 8.1 हमने जो देखा था, we have defined a class named room with an instance variable length, width, height and any window. And instance method कौन कौन से यूज की थी? set ATTR, display and area. फिर से वो 8.1 है, वो एक बार देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि भाई किस तरह से पूरा बनाया था। मैं फिर से बता दूं आपको, पहला हमने क्लास डिक्लेयर किया था जिसका नाम रखा था हमने रूम, जिसके अंदर हमने लेंथ, विड्थ, हाइट एंड हाइट एंड विंडो फ्लोट डेटा टाइप उसके वेरिएबल डिक्लेयर किया था। फिर 3 मेथड, जिसमें पहली मेथड बनाई थी व्हाट सेट ATTR। तो ये मेथड के अंदर L, W, H और N की वैल्यू थे। L मीन्स लेंथ, W मीन्स विड्थ, H फॉर हाइट एंड N फॉर नंबर विंडो। ऐसे वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए उसके अंदर, यानी आप जो भी सेट एट्रीब्यूट में वैल्यू सेट करेंगे वो ऐसे 1 बाय 1 सबको मिल जाएंगे। फिर दूसरी मेथड हमने बनाई दैट इज एरिया। एरिया के अंदर क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, वो फाइंड करके आपके सामने आ जाएगा। एंड वाइड डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर हम डिस्प्ले मेथड के अंदर क्या था, सभी की वैल्यूज हमने 1 बाय 1 प्रिंट करवाई थी। और फिर में ये क्लास हमने कंप्लीट किया। अब मेन क्लास स्टार्ट किया था हमने क्लास रूम डेमो करके, जिसके अंदर मेन के अंदर हमने इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर किया था, रेफरेंस वेरिएबल R1 डिक्लेयर किया और उस वेरिएबल को हमने क्लास के नाम के साथ ज्वाइन किया। इसको इस तरह से डिक्लेयर किया जाता है रूम R1 और फिर R1 इज इक्वल टू न्यू रूम, और सेम उसमें R2 के लिए फिर दोनों साथ में एक ही लाइन में यूज किया, रूम R2 इज इक्वल टू न्यू रूम। अब सभी को जितने भी है सभी को 1 बाय 1 हमने कॉल करवाया और कॉल करवाने के बाद आपको आउटपुट मिल गया। देखिए यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट्स में वैल्यू दी थी हमने 18, 12 जो हमने देखा था ना 18, 12.5, 10 और 2 और R2 के अंदर, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर मिल जाएगा। ये जो वैल्यूज मिल रहे हैं वेरिएबल्स को, जो वैल्यूज मिल रहे हैं ये जो एट्रीब्यूट्स में कॉन्टेंट है L, W, H एंड N की लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर विंडो, तो वो जो वेरिएबल्स बने हमारे जो वैल्यू उसके साथ मिले, तो दैट वेरिएबल्स आर नॉन एज द इंस्टेंस वेरिएबल। और ये जो मेथड बनी हमारे जो सेट एट्रीब्यूट जो मेथड बने दैट इज नॉन एज द इंस्टेंस मेथड। तो इस तरह से पूरा वेरिएबल्स एंड मेथड्स बनती है क्लास के अंदर। तो क्लास जो है हमारा क्लास इन जावा हमने देखा, इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं उसके अंदर। इसमें 3 पार्ट है, डिक्लेरेशन करना है, इंस्टेंशिएशन करना है और इनिशियलाइजेशन करना है। 3 स्टेप में ये फॉलो करेंगे हम। फॉलो करने के बाद हम हमारे जो बन जाएंगे वेरिएबल, उसमें जो भी वैल्यू देंगे उस तरह से डिफरेंट इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यूज मिल जाएगी उसको। फिर हमने देखा ओओपी लैंग्वेज के अंदर इस तरह से इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस मेथड यूज की जाती है। बाकी जो है हमने ये अभी फिर से देखा होगा, बता दूं कि वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल कौन से थे हमारे, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर विंडो, और इंस्टेंस मेथड कौन थे, सेट ATTR, डिस्प्ले एंड एरिया। तो चलिए आज यहाँ तक ही इतने देखते हैं, समराइज है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखें ताकि फिर से आपको आइडिया आ जाए और आगे का पॉइंट हम देख सके। तो आज के दिन के लिए बस इतना रखें। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी, हरि ओम।